بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور کچھ بات کریں گے موسم کی۔ ملتان، جلال پور، پیروالا، چوبارہ اور میلسی سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ حالیہ بارش تل، مونگ اور چارہ جات کی فصلوں کے لیے مفید ثابت۔ بارش سے جلال پور اور میلسی میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملتان، جلال پور، پیروالا، چوبارہ اور میلسی سمیت جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ حالیہ بارش تل، مونگ اور چارہ جات کی فصلوں کے لیے مفید۔ بارش سے جلال پور اور میلسی میں بجلی کی فراہمی معطل ہوگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی حسن سے۔ علی حسن، بتائیے گا بارش کے بعد کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، صبح سے جو تھی حبس تھی اور موسم جو تھا بالکل گرم تھا۔ لوگ جو گرمی سے ستائے ہوئے تھے، اچانک ہی تیز آندھی کے ساتھ بارش شروع ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور ہر جگہ جلسن ہو گیا۔ جی علی حسن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی ملک عتیق سے۔ جی ملک عتیق، بتائیے گا کہ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگی، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی اکمل عباسی سے۔ اکمل عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اکمل عباسی، بتائیے گا بارش کے بعد کیا صورتحال ہے؟ 2 دن سے جو گرمی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور خانقاہ شریف اور مضافاتی علاقوں میں جو موسلادھار بارش ہونے سے مرجھائے جو چہرے تھے وہ بھی کھل اٹھے ہیں۔ 2 دن سے گرمی اور حبس سے شہری جو نڈھال تھے، بارش برستے ہی موسم خوشگوار ہو گیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہونے سے شہری جو ہیں گھروں سے باہر نکل آئے گئے ہیں، گھروں میں مسحور ہو کر آئے گئے تھے اور 2 دن سے مسلسل جو گرمی تھی بہت تیز تھی اور اس کی وجہ سے ٹمپریچر زیادہ ہونے سے شہری جو تھے وہ گھر میں مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ اب موسم جو ہے بارش برستے ہی شہری جو ہے خوب انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں اور بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش برستے ہی متعدد فیڈر بھی ٹرپ کر گئے ہیں، دیہی علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ جی اکمل عباسی، یہ بھی بتائیے گا کہ بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی، بارش کا سلسلہ جو ہے موسم محکمہ موسمیات کے مطابق 2 دن تک جو ہے مزید بارشوں کی جو پیشن ہوئی ہے وہ کی گئی ہے اور موسم جو ہے بہت اچھا ہے اور شہری جو ہے اس کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اکمل عباسی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا سجاد حسین نے۔ جی سجاد، بتائیے گا کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، واسا کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اوشی و مضافات میں آج صبح سویرے سے ہی سورج نے آنکھ دکھانا شروع کر دی تھی اور سخت گرمی تھی۔ حبس کے باعث لوگ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ جیسے ہی شام ڈلتے ہوئی جو ہے نا بارش کا تیز آندھی کے بعد موسلادھار بارش کا سلسلہ ہوا ہے۔ تمام تر مضافاتی علاقے جن میں ڈھور کوٹ، چنی گوٹ، خیر پوڈھا، حفیظی اور اس کے ساتھ ہیڈ پننگ کے تمام تر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی اور حبس کا زور ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی دنوں سے یہ پیش کی گئی تھی کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج بارش ہوئی ہے۔ مزید بھی بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سجاد حسین، ہمیں جوائن کیا ہے ملک عتیق نے۔ ملک عتیق، یہ بتائیے گا کہ بارشیں کس حد تک چارہ جات کی فصلوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی؟ جی بالکل سر جی، جو فصلیں اس وقت ہمارے فصلوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا شدید گرمی کی وجہ سے، تو الحمدللہ صبح سے جو بادلوں نے تو آسمان کو کور کر لیا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی بوندا بازی شروع ہو چکی ہے تیزی اور گرد نواح میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گئے اور گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 10 دن مطلب یکم محرم سے شدید حبس اور گرمی میں مبتلا تھے شہری، لیکن جو شہریوں کے چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ جی شکریہ ملک عتیق۔ علی حسن، اکمل عباسی اور سجاد حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا شکریہ۔ اب رخ کریں کہ ملتان کا، جہاں رم جھم کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بوکی ریسٹورنٹ میں موجود ہے۔
اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا شہری کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا تو اس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ نکل آئی ہے، اور شہری جو ہے وہ یہاں پر انجوائے بھی کر رہے ہیں، موسم کا مزہ بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک محسوس جو ہے وہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر سفر کو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ بائی ٹرین ہے جو چل نہیں رہی، لیکن انجوائے یہاں پر خوب کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری یہاں پر موجود ہوں گے جن سے بات کریں گے۔ بھائی جان کیا کہیں گے، کیسا ماحول یہاں پر دیا جا رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پر؟ بھائی جان ماحول تو ماشاءاللہ سے بہت وی آئی پی ہے، بہت اچھا ماحول دیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی اپنی آنکھوں کیا کچھ کھانے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ نے اپنے لیے بھی کیا آرڈر کیا ہے؟ کیا سب سے زیادہ اسپیشل آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اسپیشل تو تقریباً ہر چیز اسپیشل ہے، جو بھی آپ ٹیسٹ کرو اس کا علیحدہ ٹیسٹ ہے۔ ہم نے تو فی الحال پیزا وغیرہ آرڈر کیا ہوا ہے، پیزا اور برگر۔ فی الحال تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہمارا آرڈر آئے گا تو ہم کھائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے اور مزید۔ باقی تو ہم نے کل بھی ہم تو ڈیلی آتے ہیں، جو ڈیلی میں ہم چیز آبزرو کرتے ہیں وہ تو یہ کہ ان کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، ہر چیز کا علیحدہ ٹیسٹ ہے، جو چیز آپ کھاؤ گے آپ کو اسی کا ٹیسٹ اچھا لگے گا۔ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ملتان کے، اگر موسم کی بات کریں تو بہت کم ایسا موسم ملتا ہے ملتانیوں کو کہ جس میں ٹھنڈی ہوا بھی ہو، انجوائے بھی کیا جا رہا ہو۔ آپ کیسے انجوائے کریں؟ ہم انجوائے بھی ویدر کا ہی کر رہے ہیں کہ مونسون کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان میں تو واقعی یہاں پہ کبھی سال میں کوئی مہینہ ایک آدھا ہی آتا ہے جس میں ایسا موسم ہے، ورنہ ملتان میں تو گرمی آپ کو پتہ 50+ ہی ہوتی ہے۔ 50+ موسم کے اندر خوشگوار لمحات جو ہیں وہ شہری گزار رہے ہیں۔ بات کرتے چلیں اور بھی شہری جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور خود بھی انجوائے جو ہیں وہ شہری کرتے ہمیں دکھائی جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی بات کرتے چلیں یا بڑوں کی بات کرتے چلیں، سبھی یہاں پر بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کچھ اور فیملیز جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی موجود ہوں گی جن سے بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ فیملیز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ تو میڈم یہ بتائیے کہ اس موسم میں اپنے فیملی کے ساتھ آنا، بچوں کے ساتھ آنا کتنا ضروری ہوتا ہے، کتنا آپ فرسٹریشن کے اس دور میں کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلیں بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں، سب سے بڑا خواتین کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ آؤٹنگ کا ٹائم نہیں دیتے، آپ نے کس طرح منایا ہے اور آج بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ بس چھٹیاں تھی اس وجہ سے بھی باہر آ گئے۔ چھٹیاں تھیں تو اس وجہ سے یہاں پر پہنچی ہے۔ بیٹا آپ کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں؟ جی اچھا یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 7 میں کتنا امپورٹنٹ ہے فیملی کے ساتھ آنا، یہاں پر وقت گزارنا، فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا ملتان کا موسم بہت کم ملتا ہے کہ اس طرح کا ہو خوبصورت سا جیسے آج ہوا ہے خوشگوار، تو کیسے انجوائے کر رہی ہیں اس موسم کو؟ بہت ہی برا، بہت ہی برا۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا کہنا چاہیے؟ گرمی ہے۔ گرمی جو ہے وہ ہے دن کے ٹائم، لیکن شام تھوڑی سی بہتر ہو گئی۔ میڈم کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی باقی فیملیز کو جو ابھی تک گھروں میں موجود ہیں، کیونکہ ملتان میں بارش کم ہوتا ہے؟ آنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے۔ آنا چاہیے اور انجوائے جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو اور یہی وجہ ہے کہ ملتان میں بھی بڑی تعداد کے اندر ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بوگی ریسٹورنٹ میں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے ہوئے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ فیملی کو وقت دینا آج کے دور میں؟ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ ملتان میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو اپنا ہی مزہ باہر نکل کے گھومنے کا فیملی کے ساتھ۔ خواتین کا عمومی طور پہ گلہ رہتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے، آؤٹنگ نہیں کراتے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آج تو کوئی ڈے آف بھی نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے، کیا بس نکالنا پڑتا ہے ٹائم، گھر والوں کے تو نکالنا پڑتا ہے، خاص طور پہ بچے جب ضد کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو پھر لے کے آنا پڑتا ہے۔ بچے جب ضد کریں گے گھومنے پھرنے کے لیے تو ان کو لے کے آنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ملتان کے اگر بوگی ریسٹورنٹ کی بات کرتے چلیں تو بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ شہری یہاں پر موجود ہمیں دکھائی دیے۔ اور اب ہم بوگی ریسٹورنٹ میں اوپر جو ہے وہ چلیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہ شہری کس طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ کے اندر کے مناظر تھے، اور ریسٹورنٹ کے باہر اگر بات کرتے چلیں اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ریسٹورنٹ کے باہر بھی جو ہے وہ ہمیں رش یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ دور دراز سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مختلف قسم کے پکوان جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اوپر چلتے ہیں اور جا کر وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے شہری جو ہیں وہ
इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुल्तान का अगर आपने मास्टर व्यू लेना है तो आपको यही सबसे खूबसूरत और प्लेजेंट किस्म का व्यू जो है वो ऊपर से मिलेगा। और अगर आप खा रहे हैं खाना और फैमिली साथ है और मुल्तान की हिस्ट्री अगर आपको जानने को मिल जाए तो ये यकीनन बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू जो है वो हो जाता है। कुछ फैमिलीज जो हैं वो भी मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं जो इस लम्हात को जो है वो इंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर खेलते हुए हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली को वक्त देना। तो चलेंगे कुछ बच्चों की तरफ, उनसे जो है वो भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना वक्त किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ क्या खाया है आज, क्या ऑर्डर दिया है, कैसा लग रहा है? आज बर्थडे की सेटिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की बर्थडेज के ऊपर शामिल होना, उनके लिए अरेंज करना, और मुल्तान का बड़ा हिस्टोरिकल किस्म का व्यू जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, क्या कहेंगे कितना एक इम्पोर्टेंट? ये एक मुल्तान के रेस्टोरेंट्स में बड़ा वैल्यूएबल एडिशन है ये ट्रेन है। बड़े बच्चे यानी इधर बड़े इंटरेस्ट से बड़े शौक से इधर आए हैं। बच्चे की सालगिरह थी, इसी वजह से मैं भी आया हूँ। मैं वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा अगर इंटरव्यू ना चलाए तो बेहतर है। मेहरबानी आपकी। तो इंजॉय करना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि देखें बच्चों की आपने एक पूरी जो है वो सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ। मुझे ये इनके हाथ में कुछ अमाउंट भी नजर आ रही है। ये आपको जो है वो ईदी मिली है, क्या मिला है? ये आपको बर्थडे का गिफ्ट है? मुझे गिफ्ट मिला है। बर्थडे का गिफ्ट जो है वो यहाँ पर मिला है। कुछ और छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी तरफ भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये बताएं कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर जो है वो आना और बर्थडे अरेंज करना? पीछे आपको मुल्तान का हिस्टोरिकल व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। क्या कहेंगी कितना इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई की बर्थडे और बहुत मज़ा भी आ रहा है। अरे क्या प्लान किया है भाई को, गिफ्ट जो है वो क्या देने जा रही हैं, और आज खाने में मेन्यू में क्या जो है वो ऐड होगा? गिफ्ट तो इसको कुछ भी दे दूंगी और मेन्यू बाबा ही डिसाइड करेंगे। मेन्यू जो है वो बाबा ही डिसाइड करेंगे, लेकिन गिफ्ट जो हैं वो इस वक्त तमाम मुकम्मल हो चुके हैं और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये बताइए मुल्तान में ऐसा मौसम कब मिलता है कि जब बारिश के बाद एक ठंडी फिजा जो है वो यहाँ पर हो? कहाँ से आए हैं, क्या कहें? मैं इधर ही मुल्तान का ही शहरी हूँ और ये मौसम मानसून के दिनों में ही वाज़िया होता है। यहाँ पे गर्मियों के बाद, तपती गर्मियों के बाद जब बारिश पड़ती है तो यहाँ का इस तरह खुशगवार मौसम होता है। बारिश के बाद ठंडी हवा का लुत्फ जो है वो लिया जा रहा है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरा माहौल जो है वो अब बन चुका है। केक भी ऑलमोस्ट आ ही रहा होगा। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बड़ा। यहाँ पे बर्थडे मनाने आए हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे। मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा है और फैमिलीज की तरफ चलेंगे और उनसे जाकर जो है वो भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो अपना वक्त गुजारी है। ऑर्डर अभी थोड़ा लेट है, बाकी फैमिलीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने जो लम्हात हैं उनको यादगार जो है वो बना रहे हैं। कुछ यहाँ पर आइसक्रीम खाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं फैमिली के साथ आइसक्रीम खाना, वक्त गुजारना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किस तरह से मैनेज किया हुआ है अपनी टाइमिंग को, क्योंकि आजकल जो है वो वर्क लोड बहुत ज़्यादा है और ये डे जो है वो भी कोई ऑफ नहीं है, क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट है जी, वक्त गुजारा जा रहा है और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपना वक्त जो है वो गुजारते हैं और फैमिलीज जो हैं वो किस तरीके से आज जो है वो अपना एंजॉय जो है वो कर रही हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ फैमिली जो है वो दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि छुट्टी का दिन तो नहीं है लेकिन फिर भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी बुनियादी वजह ये खुशगवार मौसम है। मुल्तान में ऐसा मौसम मिलता ही बहुत कम है। क्या ऑर्डर दिया है, फैमिली को लेके आए हैं, कैसे घुमा रहे हैं? सर हम फैमिली को लेके आए थे, पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया है, पिज़्ज़ा हमने खा लिया है, अब हमारी घर जाने की तैयारी है। अब कुछ घुमाना है फैमिली को किले पर या बस वापसी? जबकि बारिश आई है ना तब के हम इधर आए हुए हैं। सबका एंजॉय जो है वो कर रहे हैं। मैडम किस तरह से मनाती हैं? बड़ा मुश्किल होता है मर्दों को मनाना कि वो आउटिंग के लिए आपको लेकर जाएं, क्या कहेंगे? नहीं, आसानी से ही मान जाते हैं मेरे हस्बैंड तो। ये बताएं कि आप कितना समझती हैं इम्पोर्टेंट के घरों से बाहर निकलना, फैमिली के साथ जाना, आउटिंग करना, ये कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आउटिंग करनी। उसकी बुनियादी वजह क्या है?
सर मैं बताता हूँ ना बुनियादी वजह क्या है। बच्चों को ले जाना, घुमाना फिराना, घर में खुशहाली, जब बच्चे खुश तो घर खुश, घर बेहतर चलता है। क्या मैसेज अपनी जानिब से देना चाहेंगे बाकी? जानिब से लोगों को निकलना चाहिए, फैमिलियों को फिराना चाहिए, बच्चों को तफरीह पे ले जाना चाहिए, फिरना चाहिए। और आगे गर्मी है, जो गर्मी की वजह से वैसे बंदा नहीं निकल सकता। ये तो कुदरती आज बारिश आ गई, अल्लाह की तरफ से मौसम बन गया ऐसे। हाँ जी, कुदरती बारिश आ गई और उसको बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो आ चुके हैं। ये बच्चे जो हैं छोटे मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ बर्थडे का जो केक है वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगा। शहरी एंजॉय करेंगे। एक खूबसूरत किस्म का मौसम शहर मुल्तान में देखने को नजर आ रहा है बारिश के बाद, और मुल्तानी ऐसे मौसम को कभी भी नहीं छोड़ते और मुल्तानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इस खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 24 कैरेट सोना 2,54,000 रुपए फी तोला हो गया। इस पर मजीद तफसील जानने के नुमाइंदा रही फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा कि सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,32,833 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोना 21,700 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा, जबकि 22 कैरेट सोना 20,000 रुपए फी ग्राम हो गया। मुल्तान में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज। इस हवाले से सीमेंट डीलर्स का कहना है सीमेंट का बैग 600 का एक्सपोर्ट किया जाता है, सीमेंट का बैग 1,450 का दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। की तामीर में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट महंगी होने पर मुल्क भर में डीलर, सीमेंट के जो डीलर हैं उनकी जानिब से हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। बात करते चलें तो आज हड़ताल का चौथा रोज़ है, क्योंकि सीमेंट का बैग जो है वो 1450 रुपये का हो चुका है, जिसकी वजह से जो सीमेंट के डीलर हैं उनकी जानिब से हड़ताल जो है वो जारी है। इस वक्त सीमेंट के डीलर ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी हमारे हमने मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, सीमेंट इतनी महंगी क्यों हो चुकी है, और ये ना बता दिए कि सीमेंट के डीलर जो हैं उन्होंने फैक्ट्रियों को ऑर्डर देना बंद कर चुका है, सीमेंट की खरीदारी नहीं कर रहे, क्यों, क्या वजह हुई है? इस सवाल से क्या कहेंगे आप? ये हम जो है सीमेंट डीलरान जो है ये 2015 से दे रहे हैं। अब इसको जो है पहले ये सिर्फ 14 आइटमों पे मुहित था, अब इसको हर आइटम पे लगा दिया गया है। हर वो आइटम जो किसी फैक्ट्री से निकलती है या इंपोर्टर जो है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, होलसेलर को देता है, या फैक्ट्री जो है अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को देती है, तो उस पर 2.5% टैक्स लग गया है, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से जो है पूरा जनूबी पंजाब, मरकज़ी पंजाब और अपर पंजाब जो है उसने बिल्कुल लिफ्टिंग बंद कर दी है। जनूबी पंजाब में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही। तो ये अगर हुकूमत ने और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इदारों ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो यहाँ पे सीमेंट की शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी और लोगों को जो बची खुची बची हुई जो तामीर हो रही है थोड़ी बहुत, वो भी होने से रह जाएगी। क्या कहेंगे, कब यूं ही हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा और क्या मुतालबात हैं आपके? जी, हमारा पहला मुतालबा तो ये है सीमेंट कंपनियों से कि वो रेट कम करें। अगर एक्सपोर्ट के लिए इतना सस्ता दिया जा सकता है तो पाकिस्तानी अवाम ने क्या गुनाह किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि FBR और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 236H इनकम टैक्स आर्डीनेंस की पुरानी शरह ½ और 1% बहाल करे, नहीं तो हम जब तक ये पुरानी शरह बहाल नहीं होगी हम फैक्ट्रियों से, डीलरान जो पूरे मुल्क के हैं वो फैक्ट्रियों से माल लेना बंद कर देंगे। और ये पिछले आप देखें 2-3 दिन छुट्टियां थी, इस वजह से कोई आपको मार्केट में जो है वो सीमेंट अभी नज़र आ रहा है। ये वो सीमेंट है जो यौम आशूर से पहले आया हुआ है। और इस हड़ताल में रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ अजला और सूबे जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं नहीं समझता अगर ये 2-4 दिन मज़ीद भी हड़ताल जारी रहती है तो पूरे मुल्क के जो है ना वो कराची से लेके और मकरान तक और मकरान से लेके गिलगित तक जो है वो सीमेंट डीलर जो है वो सीमेंट मंगाना बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की जानिब से सीमेंट महंगे होने की वजह से जो है वो हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का चौथा रोज़ है। सीमेंट डीलर ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी का यही कहना है जो सीमेंट की फैक्ट्री हैं उनको चाहिए कि सीमेंट पर जो है वो टैक्स। शहर ओलिया में महंगाई का तूफान थम न सका। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। शहर में रोटी 15 से 20 रुपए फरोख्त जारी है। मुल्तान में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया।
रोटी महंगी होने से शहरी परेशान। कहते हैं सरकारी रेट लिस्ट में रोटी की कीमत 13 रुपए है, जबकि तंदूर मालकान 15 से 20 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं? 20 रुपए की रोटी, अब उन्होंने कहा ये 13 रुपए की रोटी है। अब ये 100 ग्राम के बाज़ होटल जहाँ पे रेट वगैरह पड़ती है वहाँ पे 13 रुपए है गालबन, और जो बाकी होटल्स हैं वहाँ पे 20 रुपए चल रही है अभी भी। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना मुश्किल हो गया है, जबकि जहां 10 रोटियां घर लेके जाते थे अब 5 लेकर जाते हैं। महंगाई ने रोटी पे भी कब्जा कर लिया है। रोटी की कीमत तो पहले कम थी, लेकिन आटे की वजह से, महंगाई की वजह से रोटी का रेट मज़ीद बढ़ गया है, और इसकी वजह से पहले सेल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती थी, लेकिन अब दोबारा महंगाई हो गई है और इसकी वजह से सेल भी कम हो गया है। दूसरी जानिब तंदूर मालकान का कहना था कि रोटी महंगी होने से सेल कम हो गई है। सारा दिन गर्मी में काम करने के बाद भी इतना नहीं कमा सकते कि घर के अखराजात पूरे कर सकें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से मुल्तान के अवाम भी परेशान। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफा। पेट्रोल 275 और डीजल 283 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के दौरान 2 बार इजाफा। पेट्रोल 275 रुपए और डीजल 283 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्तान में अंदरून और बैरून शहर की ट्रांसपोर्ट के किरायों में होश रुबा इजाफा। रिक्शा वालों ने भी किराया 10 से 30 रुपए बढ़ा दिया। मुसाफिर बढ़ते किरायों की वजह से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। खाना पीना और सफर करना गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। सफर करना है, पहले 60 रुपए किराया था, अब पेट्रोल बढ़ने की सूरत में 70 रुपए कर दिया है। मुश्किल कर दिया इनने, जीना भी हराम कर दिया। पेट्रोल की वजह से आटा भी महंगा, घी भी महंगा, चीनी भी महंगी, हर चीज महंगी है। डबल फाटक हमने जाना होता था, हम 10 रुपए में सफर कर लेते थे, अब रिक्शे वाला 20 रुपए मांगता है। वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, अब हमारे को वारा नहीं खाता। पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है कम से कम आमदनी वाला भी उसमें गुजारा कर सके। ट्रांसपोर्टर से कहना था कि पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब महंगाई का नया तूफान है। हम तो किराया बढ़ा देते हैं मगर सारा बोझ सवारी पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी वसूली किराए में 10% तक इजाफे का दिया दे दिया। हुकूमत को चाहिए इस पे सोचना, क्योंकि पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चीनी है, घी है, बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। ये एक तूफान आ गया, 10 रुपए में एक तूफान आया, 10 रुपए का एक नाम है। तो गरीब का जीना पहले भी बड़ा मुश्किल है, अब मजीद और जीना मुश्किल हो जाएगा। 300 रुपया एलपी दे रहे हैं, पेट्रोल का रेट देकर सवारी किराया नहीं देती। रिक्शे वाले क्या करें? रिक्शे वाले तो हुकूमत करो रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, गटर लाइन के बिल आ रहे हैं। आटे का रेट ज्यादा है, आटे का 1600 रुपये का गट्टू दे रहे हैं, 1500 रुपये 15 किलो का। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान। महंगाई की वजह से घरेलू झगड़े मामूल बन गए। मुजफ्फरगढ़ के शहरी कहते हैं कि बिजली की कीमत में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती महंगाई से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई को जो 5वां गेयर लगा है, इससे न सिर्फ आम अवाम मुतासिर हो रहे हैं बल्कि घरेलू झगड़े भी मामूल बन गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरी होटलों, अवामी मकामात और चौक चौराहों पर महंगाई को कोसते नजर आते हैं। अपने बच्चों का जो रोटी पानी लेके आए वो भी नहीं पूरी तरीके से खा सकते। लिहाजा हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, ये जो 200 यूनिट के बाद जो आप ये लोड डाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, गरीबों खून चूस रहे हैं। ये 300 यूनिट के बाद लेके जाएं गरीब आदमी के लिए। शहरियों का कहना है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ ही हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां भी कागजात की हद तक महदूद हैं। किसी ग्राम फरोश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ट्रांसपोर्ट ने भी ये सबसे बड़ा एक बहाना तलाश कर लिया कि जी रात 10 रुपए तेल का रेट बढ़ गया है। अब तेल का जो रेट बढ़ा है 10 रुपए, इन्होंने 50 रुपए बढ़ा दी। शहरियों में और ट्रांसपोर्टर में और दुकानदारों में आए दिन नए से नए फसादात। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि आम आवाम के लिए जिंदगी आसान हो सके। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। में सेनेट यूसर रजा गिलानी से वफाकी वजीर अवैस लगारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार अवैस खान लगारी ने तवानाई के मनसूबों की तफसील बताई। मज़ीद तसला जानेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से जो है वो वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की पार्लियामेंट हाउस में यहाँ मुलाकात हुई है और
यूसुफ रज़ा गिलानी और अवैस लगारी के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर खास तौर पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को ब्रीफिंग देते हुए अवैस खान लगारी ने तवानाई के मनसूबे की जो है वो तफसील जो है वो बताई है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तवानाई ने जो है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग के मुताबिक जब कहेंगे वो कमेटी ऑफ हॉल हाउस के दरमियान जो है वो महकमे और बिजली के मनसूबे पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दे दूंगा। यूसुफ रज़ा गिलानी और सरदार अवैस लगारी के दरमियान इंडस हाईवे राजनपुर से डेरा इस्माइल खान, बारास्ता जामपुर, डेरा गाजी खान डबल रोड के मनसूबे और डीजी खान रोहितियों हिल टोरेंट्स को महफूज बनाने के लिए जो है वो लाखों एकड़ ज़राई अराजी को मुस्तफीद करने के लिए डैम की शक्ल में जामिया मनसूबे बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी ने जो है वो इस सिलसिले में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से भी जल्द जो है वो ब्रीफिंग लेने के हवाले से जो है वो इजाज़त किया कि वो जल्द जो है वो इस हवाले से चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से भी इस हवाले से ब्रीफिंग लेंगे ताकि इन मनसूबों को जो है वो जल्द पाए तक पहुंचाया जा सके। जी शुक्रिया ज़ोहैब बुखारी।